خدا کی طرف رجوع کریں کہ پالوس رسول کی خدمت کا کس کا مقصد تھا. یہ سوچیں ان سے سننا. صرف پالوس رسول ہی نہیں بلکہ باقی جتنے بھی اعمال کی کتاب کے اندر ہمیں رسول اور شاگرد منادی کرتے نظر آتے ہیں. اگر آپ مطالعہ کریں، بغور مطالعہ کریں اعمال کی کتاب کو، تو آپ ان کی خدمت کے اندر یہ دیکھیں کہ یہ 5 چیزیں. اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر کیا پائیں؟ ملاش پائیں. بشداد نے یہاں پر ختم کیا تھا کہ وہ شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف کیا لائیں؟ رجوع لائیں. اگلے 2 پوائنٹ کر کے پھر ہم اس کتاب کو جو ہے یہاں پر کلوز کرنے کے ہے. مجھ پر ایمان لانے کے باعث. تو یاد رکھیے کہ جب تک آپ نے کلام کو سنا نہیں، جب تک آپ کو کلام کی سمجھ نہیں آئی، آپ ایمان کبھی لے کر نہیں آ سکتے. جب تک آپ کو کلام کی سمجھ نہیں آئے گی، آپ ایمان نہیں لے کے آ سکتے. آپ ایماندار نہیں کہلا سکتے. تو یہاں پر پالوس رسول کہتا ہے کہ جو چوتھا اور 5واں مقصد خدا یسوع نے مجھے دیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی. اب بھی جو لوگ اپنے آپ کو گناہگار جانتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی تک وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان نہیں لے کر آئے. جو بھی گناہگار ہونے کے دعوے دار ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، وہ کلام کے ساتھ ہم خیال نہیں ہے، کلام کے ساتھ وہ ایک سوچ نہیں ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ ایمان لانے کے باعث گناہوں سے کیا پائیں؟ گناہوں کی معافی پائیں اور مقدسوں میں شریک ہو کر. تو اگر ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو نہ صرف ہم اپنے گناہوں سے معافی پا سکتے ہیں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم مقدسوں میں. تو یاد رکھیے مقدس کے معنی پاک کرنا نہیں ہوتے. نہ تو عبرانی زبان میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے اور نہ یونانی زبان میں. مقدس کا مطلب ہوتا ہے الگ کیے ہوئے، علیحدہ کیے ہوئے، مخصوص کیے ہوئے. مقدسوں میں یعنی کہ جو اس دنیا داری سے الگ کیے گئے ہیں، جو اس دنیا میں سے چن لیے گئے ہیں. اور اس کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے منصوب کیا کہ وہ مقدسوں میں کیا ہوں. پالوس رسول کی ٹوٹل خدمت کا جو مقصد تھا، جس کے 5 مقاصد تھے جن کی بنیاد پر وہ منادی کرتا تھا، وہ تعلیم دیتا تھا، وہ معجزات کرتا تھا، وہ یہی. سب سے خاص چیز پالوس رسول کس چیز کی منادی کرتا تھا؟ یسوع مسیح کی منادی کرتا تھا اور ساتھ میں خدا کی بادشاہت کی منادی کرتا تھا. کیونکہ یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا، مرکز کی انجیل کو اگر ہم پڑھیں اس کے پہلے باب کی 15 اور 14 آیت کے اندر، تو یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ وقت پورا ہو گیا. وقت پورا ہو گیا. کیا کریں؟ اس کو دیکھتے ہیں اور پھر ہم آگے پڑھیں گے. ہماری جو مرکزی آیت ہے وہی تھی کہ کیونکہ خداوند کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ خداوند سلطنت کرتا ہے، وہی قوموں پر کیا ہے؟ حاکم ہے. تو آج ہم بادشاہی کے تعلق سے وہ سیکھیں گے، کیونکہ اعمال کی کتاب کا آغاز اگر ہم دیکھیں اور اس کا اگر ہم اختتام دیکھیں تو ہمیں خدا کی بادشاہی کے بارے میں نظر آتا ہے. ہم مرکز کے انجیل میں آتے ہیں، اس کے بعد اعمال کی کتاب میں ہم آئیں گے. جو میں پہ لکھا ہے پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد، یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. پھر کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کرو
ایمان لاؤ۔ تو اگر خدا کی بادشاہی نزدیک آ چکی ہے تو یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ یوحنا کے پکڑوائے جانے کے یوحنا کب پکڑوایا گیا؟ اس کو پتہ ہے یوحنا کب پکڑوایا گیا تھا؟ یسوع مسیح کی خدمت کے جو 3.5 سال تھے ان میں سے کون سے سال میں پکڑوایا گیا تھا؟ آخری سال آخری سال جو تھا اس سال یسوع مسیح نے گلیل کے اندر سفر بھی کرتا رہا۔ پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور اس کی بادشاہی خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور کیا کرو؟ توبہ کرو اور خوشخبری پر کیا کرو؟ ایمان لاؤ۔ ہم اعمال کی کتاب میں جاتے ہیں، اعمال کی کتاب کے پہلے باب میں اور پھر اعمال کی کتاب کے آخری باب میں اب دیکھیں تو ہمیں بادشاہی کا جو ذکر ملتا ہے۔ اعمال کی کتاب جو ہے وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو سکھایا، جس کی منادی یسوع مسیح نے کی، بائبل اسی طرح شاگرد یسوع مسیح کے اس میسج کو، اس تعلیم کو، اس منادی کو لے کر وہ کیا کر رہے تھے؟ منادی کر رہے تھے کہ خدا کی بادشاہی قریب، وہ لوگوں کو خدا کی بادشاہی میں داخل کر رہے تھے۔ اعمال کی کتاب اس کو پہلا باب ان کے پاس کتاب مقدس ہے، بولے پہلی آیت سے لے کر چوتھی آیت تک ارشاد جی تلاوت کریں گے۔ اے تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصریح کیا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح قدس کے وسیلے سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ آمین۔ یسوع مسیح 40 روز تک مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ رہا اور انہیں خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ اور جب شروع سے ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے یسوع جو سکھاتا اور جو یسوع کرتا اور سکھاتا تھا، جو یسوع کرتا اور سکھاتا تھا۔ اگر میں کرتا کچھ ہوں سکھاتا کچھ ہوں تو یہ غلط ہے، یہ تضاد ہے، یہ سمجھوتا ہے۔ اعمال کی کتاب کا ہے 28 باب کے اندر یہاں پہ لکھا ہے جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا تھا، سو جو اس کا شاگرد ہے، جو اس کا رسول ہے، وہ اپنے ربی کی تعلیم سے ذرا بھی ہٹ نہیں سکتا اگر واقعی وہ اس کا شاگرد ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا آخری باب 28واں باب جس کو ہم دیکھیں گے کہ پالوس رسول 2 سال تک ایک رائے کے گھر میں رہا۔ 28ویں باب کی 23ویں آیت میں پڑھنے لگا، لکھا ہے وہ اس سے ایک دن ٹھہر کر کثرت سے اس کے ہاں جمع ہوئے اور وہ خدا کی بادشاہی کی گواہی دے دے کر، پالوس رسول وہ خدا کی بادشاہی کی گواہی دے دے کر اور موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں سے یسوع کی بابت سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا گول مول بات نہیں، ایکسپلین کرتا رہا، بیان کرتا رہا صبح سے لے کر شام تک۔
खुदा की बादशाही की गवाही देकर और मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों से यीशु की बाबत समझाकर यीशु की बाबत समझाना जरूरी है। यीशु कौन है? यीशु मसीह ने किस तरह इस जमीन पर आकर आसमान की बादशाही को, खुदा की बादशाही को कायम किया। हम एक तरतीब के साथ मूसा की तौरात में भी जाएंगे, नबियों के सहीफों में भी जाएंगे, हम ज़बूरों में भी जाएंगे और चेक करेंगे कि पौलुस रसूल जो कुछ सिखा रहा था क्या वाकई हमारे पास जो किताब मुकद्दस है उसमें भी ऐसे जिक्र है। और जब हम इसकी आखिरी आयत पढ़ते हैं हमारी की किताब की, लिखे हैं और वो पूरे 2 वर्ष, पौलुस कितने वर्ष? पूरे 2 वर्ष अपने किराए के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और कमाल बुज़दिली से कमाल दलेरी से बगैर रोक टोक खुदा की बादशाही की मुनादी करता और खुदावंद यीशु की बातें सिखाता रहा। यीशु जो करता और सिखाता, हमारी किताब के अंदर लूका ने यहाँ से आगाज किया, उसने खुदा की बादशाही का भी बताया जो यीशु करता और सिखाता था। यीशु इसी खुदा की बादशाही की बातें 40 दिन तक उन्हें बताता रहा, सिखाता रहा। और पौलुस रसूल बाइंड उसी तरह 2 साल अपने किराए के घर में रहकर जो उसके पास आते थे वो उन्हें खुदा की बादशाही की मुनादी करता और खुदावंद यीशु मसीह की बातें सिखाता। बादशाही क्या है? खुदा की बादशाही क्या है? आसमान की बादशाही क्या है? तो याद रखिए कि आसमान की बादशाही और खुदा की बादशाही ये एक ही बात है। अगर हम बाइबल मुकद्दस के असल वतन के अंदर जाएं, इब्रानी जुबान के अंदर हम जाएं, खुदा की बादशाही के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है मलकूत। क्या लफ्ज है? मलकूत। ये लफ्ज जब हम उर्दू में पढ़ते हैं बादशाह, तो हमारे ज़हन में ये कॉन्सेप्ट आता है कि शायद ये किसी इलाके, किसी मुल्क की तरफ इशारा है। वो किताब मुकद्दस में इसका भी जिक्र है, लेकिन इब्रानी जुबान के अंदर लफ्ज जो मलकूत इस्तेमाल होता है उससे मुराद वो दौर है जहां पर खुदा का हुक्म चलता है, जहां खुदा का इख्तियार है। तो अगर हम किताब मुकद्दस का मुताला करें अहकाम का, तो उसमें खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही लफ्ज कलीसिया से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल हुआ। सिर्फ 3 मरतबा लफ्ज कलीसिया अनाजील के अंदर इस्तेमाल हुआ है। किसकी अंजील में? मत्ती रसूल की अंजील। लेकिन उसी मत्ती की अंजील के अंदर अगर हम उसका बगौर मुताला करें तो खुदा की बादशाहत जो है ये 32-33 मरतबा इस्तेमाल हुआ। यीशु मसीह की मुनादी का जो मौसम था वो यही था कि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, वक्त पूरा हो गया है, अब तुम्हारे पास वक्त नहीं रहा, खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, अब करो क्या? अब तौबा करो, खुशखबरी पर क्या करो जी? ईमान लाओ। तो खुदा की बादशाह जो है मेरे से उसके 3 पहलू, अगर हम किताब मुकद्दस का मुताला करते हैं, अगर हम पढ़ते हैं तो हम इसको जानते हैं कि खुदा को असली और अबदी बादशाह कहा जाता है। या उसकी बादशाहत जो है वो अज़ल से, वो अज़ली बादशाह, वो अज़ल से बादशाह है। जब उसने मखलूक़ात को बनाया, आसमानी और ज़मीनी, उन पर वो बादशाह है, उन पर वो इख्तियार रखता है। ज़बूर में से हमने पढ़ा था, आए तौरात में से पढ़ते हैं, मूसा की तौरात में से, क्योंकि पौलुस रसूल के बारे में सीख रहे हैं कि पौलुस रसूल जो था वो सुबह से लेकर शाम तक खुदा की बादशाही के बारे में और यीशु मसीह के बारे में मूसा की तौरात और नबी की सहीफों से वो बताता रहा। अगर हम पैदाइश की किताब उसका पहला बाब
اس کی پہلی آیت ہم پڑھیں تو لکھا کہ ابتدا میں زمین و آسمان کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ کس طرح پیدا کیا؟ اپنے کلام سے۔ کس سے پیدا کیا جی؟ کلام سے۔ اپنے کلام سے۔ اسی تصدیق کی لفظ دیتے ہیں برسک نکالے زبور کی کتاب۔ تینتیسواں زبور اور اس کی چھٹی آیت ہم نے پڑھا کہ ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو کیا کیا؟ پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا؟ زبور میں اس چیز کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے، بتاتا ہے۔ لکھا کہ آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا سارا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا ہے۔ سو خداوند جو بادشاہ ہے وہ حکم کرتا ہے اور اس کا کلام ہر ایک چیز کو کریٹ کرتا ہے کہ اس کے کلام کے اندر قدرت ہے کہ وہ خلق کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر یوحنا رسول کو بھی قدرت سے یہ مکاشفہ ملا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے، سب چیزیں تو میرے عزیزوں آسمان کی چیزیں ہوں یا زمین کی چیزیں ہوں یا زمین کے نیچے کی چیزیں ہوں، ہر ایک چیز کلام کے وسیلے سے ہے۔ اور کلام جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ میں سب نکالیں ابراہیم کے نام پر رسول کا تھا۔ پہلی دوسری آیت پر ہم غور کریں گے، تیسری آیت پہ دیکھیں ابراہیم کے نام پر رسول کا تھا، اس کا پہلا باپ، اس کی پہلی تین آیات۔ دیکھیں اگلے زمانہ میں، اگلے زمانہ سے مراد آنے والے نہیں بلکہ جو گزر چکا، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے یا خلق کیے۔ سو ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کریٹ کیا، خلق کیا۔ کیسے کیا؟ اپنے کلام کے وسیلے سے، اور اس کا کلام اس کا بیٹا ہے۔ عبرانی کا مصنف ہمیں یہ بتاتا ہے۔ سو خداوند جو بادشاہ ہے، خدا جو بادشاہ ہے، وہ حکم صادر کرتا ہے اور چیزیں مادر وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سو پالوس رسول 2 برس تک خدا کی بادشاہی کی منادی کرتا رہا۔ صبح سے شام تک ہم نے پڑھا کہ وہ یسوع کی بابت اور خدا کی بادشاہی کی بابت موسیٰ کی توریت میں سے، نبیوں کے صحیفوں میں سے وہ سکھاتا رہا۔ تو موسیٰ کی توریت میں ہم نے دیکھا کہ خدا بادشاہ، زبور میں سے بھی ہم نے دیکھا۔ اگر ہم پرانے احکام کو دیکھیں تو ہمیں جگہ بہ جگہ یہ ملتا ہے کہ خدا بادشاہ، خدا بادشاہ۔ تو میں نے پہلے بتایا کہ اس کی بادشاہی ازلی اور وہ جو بادشاہ ہے اس نے جب انسان کو خلق کیا تو اس نے کام، ہم دوبارہ پیدائش کی کتاب میں آتے ہیں، اس نے مجھے آپ کو اور آپ کو گڈ نیوز ہے، اس نے مجھے اور آپ کو بادشاہ پیدا کیا، کیونکہ بادشاہی سے مراد یہ ہے جو شخص اختیار رکھتا ہے۔ بادشاہی، خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر محفوظ نہیں ہے۔ پالوس رسول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا کی بادشاہی یہ نہیں ہے کہ بہت کھانے کو کچھ ہے، پینے کو بہت کچھ ہے، نہیں، وہ کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر محفوظ نہیں ہے، بلکہ بادشاہی کے معنی یہ ہے، مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہو، آپ اختیار کے ساتھ حکم دے سکیں۔
पहले बाप की 26 में जो है हम देखें, लेकिन फिर खुदा ने क्या किया, कहा, यानी हुक्म दिया। खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शिबी पर, कुछ लोग इन सूरत और शिबी को एक ही लेते हैं, अगर एक हो तो फिर उनको अलग अलग लिखने का कोई मान ही नहीं है। शिबी क्या होती है? शिबी जाहिरी होती है, फिजिकली आप जो नजर आते हैं ये आपकी शिबी है, और जो सूरत है ये बातनी भी होती है और जाहिरी भी होती है। लेकिन खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत, तो जो बातनी सूरत है उसके अंदर खुदा ने अपनी जात की सारे जो औसाफ हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो उसने इंसान के अंदर उसने क्रिएट किए, उसके अंदर रखे हैं। उसको हम आगे देखेंगे। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानिंद बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर जो जमीन पर रेंगते हैं, क्या रखे जी? उसने हमें बादशाह पैदा किया, क्योंकि उसकी जात के अंदर खासा है कि वो बादशाह है, और उसने इंसान के अंदर भी इस औसाफ को रखा कि वो भी तमाम जमीन पर क्या रखे जी? इख्तियार रखे। उसने बादशाह पैदा किया है। मुझे नहीं पता कि हम अपने बारे में क्यों इतनी नाक़िस सोच रखते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है। मेरे भाइयों, तख्लीक पर नजर करें, अपने बनाने वाले की तरफ नजर करके उसने क्या औसाफ आपके अंदर रखे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। यहाँ पर शिबी लफ्ज़ नहीं आया। सूरत, बातनी, तो खुदा के भी हाथ हैं, पाँव हैं, नाक है, आंखें हैं। खुदा जो रूह है, तो याद रखिए कि रूह हवा नहीं होती, उसके सारे जैसे हमारे फिजिकल बॉडी पार्ट्स हैं, इसी तरह खुदा के भी बॉडी पार्ट्स हैं। इसीलिए तो उसने हमें अपनी सूरत और अपनी सूरत ज़ाहिरी भी है और अनदेखी भी है, बातनी भी है और ज़ाहिरी भी है, और शिबी जो है वो सिर्फ ज़ाहिरी है। आगे बढ़ते हैं। खुदा की सूरत पर, खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। यहाँ पर मूसा दूसरी मर्तबा सूरत पर जोर देता है। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। बहुत से वजाहत तालीम देते हैं कि औरत का कोई वो बाख्तियार नहीं है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं। यहाँ पर जब खुदा इंसान को क्रिएट कर रहा है, आदम और हवा को बना रहा है, तो खुदा ने जो औसाफ आदम के अंदर रखे वही औसाफ उसने। इस चीज़ को हम सीखें कि मसीहत औरत की कहने की जो हैसियत है उसको काम नहीं करती, बल्कि बराबर करती। जो साफ खुदा ने आदम के अंदर रखी वही साफ औरत के अंदर रखी, जो खूबियां उसके अंदर थी वही खूबियां उसके अंदर थी। और फिर क्या हुआ? खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, खुदा ने उनको बरकत दी और कहा क्या? फलो। क्या मीनिंग है जी फलो? आज मेरे कुछ बहने बांझ हैं, कुछ मेरे भाई हकीम हैं, कल्ले कल्ले। इस बांझपन को खुदा की मर्जी समझते हैं, मेरे से ऐसा नहीं है। खुदा ने कहा फलो। हम अक्सर जरूर पढ़ते हैं कि औलाद खुदावंद की तरफ से पेट में है, तो खुदावंद ने कहा फलो, फ्रूटफुल हो।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کہ حل ہو پھر وہ جو ہے وہ وجہ کیا ہے؟ آج تک اس کو بیان کرتا ہوں۔ اور بڑھو اور زمین کو معمورو محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں، ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں۔ سو بادشاہی یہ ہے کہ آپ اختیار کریں، آپ حکم دیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں موسیٰ کے اختیار کو، یشوع کے اختیار کو اس نے روک دیا سورج اور چاند، موسیٰ کے اختیار کو میں بیان کروں کہ کس طرح خدا کے کہنے کے مطابق وہ کرتا تھا، حکم کرتا تھا، وہ ہو جاتا تھا۔ وقت نہیں ہے۔ لیکن میں اس چیز پر بات کروں گا کہ کس طرح انسان اپنا اختیار کھو دیتا ہے۔ میرے ساتھ آئیے پیدائش کی کتاب اور اس کے 30 باب کے اندر یاد رکھیں کہ بادشاہی وہی شخص کرتا ہے جس کے پاس کلام ہے، جس کے پاس خالص کلام ہے، جس کے پاس کلام ہے، جس کے اندر کلام ہے، جس کے منہ میں کلام ہے، وہ حکم دیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اور جب کلام کے ساتھ غیر کلام مل جائے تو پھر کچھ نہیں۔ میں آپ کو دکھانے لگا کہ جب خدا کے کلام کے ساتھ آمیزش کر دی جائے تو پھر کچھ نہیں ہوتا، اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ میں سب نکالیں پیدائش کی کتاب اس کا 30 باب لکھا ہے، شام کل دستی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا بولا تھا چلاک، اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ یہ ابلیس کلام کر رہا ہے۔ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا، اب یہ اس کو کلام کی سوچ دے رہا ہے، تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز، تو خدا کا کلام کیا تھا؟ کسی روز تم نے اس درخت کا پھل کھایا تم مرو گے۔ حدیث کا کلام کیا ہے؟ تو جب کلام کے ساتھ غیر کلام ملتا ہے یا آپ کلام کو چھوڑ کے غیر کلام کو قبول کرتے ہیں تو یاد رکھیے آپ جسمانی اور روحانی طور پر مر سکتے ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ تم مرو گے، ابلیس کہتا ہے کہ تم نہیں مرو گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پھل کھانے سے پہلے حوا نے خدا کے کلام کو جو ہے اس نے رد کیا۔ خدا نے کہا تم مر جاؤ گے، اس نے ابلیس کے کلام کو قبول کیا کہ تم نہیں مرو گے، اور پھر کیا ہوا؟ جو کلام ابلیس نے اسے دیا تھا اس پر اس نے فرسٹ سٹیپ اٹھایا ہے۔ یاد رکھیے کہ جو بات کلام دیتا ہے، جو بات کلام بتاتا ہے، اس پر عمل کریں گے تو آپ کی بھلائی ہے۔ جو چیزیں غیر کلام ہیں، جو کلام سے ہٹ کے ہیں، وہ کرتے رہے، اس کا حاصل کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنا ٹائم، اپنی زندگی آپ ویسٹ کر رہے ہیں۔ آپ روحانی طور پر بھی مرے ہوئے ہیں، تو آنے والے وقت میں آپ جسمانی طور پہ مر جائیں گے تو آپ نہ تو یہاں پر خدا کی بادشاہت میں ہیں اور نہ پھر آنے والی جو خدا کی بادشاہت ہے اس میں ہیں۔ اس پہ سوچیں، غور کریں۔ کہ خدا کی بادشاہت کے اندر ہم ہیں، کیا ہمارے پاس اختیار ہے؟
सो हवा ने उस इख्तियार को जो खुदा ने जब उन्हें अपनी सूरत पर खल्क किया, जो लिखा था उसने उसे क्या कर दिया, खो दिया। यानी कि उन्होंने अपनी बादशाह और अपनी बादशाहत को खो दिया। जब खो दिया तो फिर हम जब देखते हैं कि खुदावन उनके गुनाह का जो नतीजा था वो उन्हें सुनाता है, और साथ ही खुदा असखुद जो है वो उन्हें ये खुशखबरी भी देता है कि मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। सो जिनके पास इख्तियार है, जो बादशाही करते हैं, याद रखिए कि वही सर को कुचल सकते हैं। औरत की नस्ल यीशु मसीह की तरफ इशारा है, औरत कसमरी की तरफ इशारा है, औरत की नस्ल। और फिर अब्लीस को क्या कहा, तेरी नस्ल, यानी कि अब्लीस की नस्ल है। सो जो गैर कलाम कबूल करते हैं, गैर कलाम को कबूल करके उस पर चलते हैं, बाइबल जिसकी तस्दीक नहीं करती उस पर चलते हैं, ये गैर कलाम है। बाइबल उन्हें अब्लीस की नस्ल कहती है। हमें इसका बाकी बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करता था। आज मैं यहाँ पर तो शायद तो मिल सकता, जब तक वो मजहबी जो लीडर थे उनको अपनी तरफ आते देखते वो कहते हैं, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गजब से भागो? उसने क्यों कहा सांप के बच्चों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि सांप के बारे में अगर आप सर्च करें, देखे जाकर, तो सांप जब अपने दिल के अंदर जाता है बिल्कुल सीधा जाता है, और जब बाहर निकलता है थोड़ा सा सीधा निकलता है, लेकिन जब वो बाहर निकल जाता है तो फिर उसी तरह एक मरतबा हमारी भी प्रैक्टिस है कि हम चर्च में आते हैं तो मेरे बाइबल बिल्कुल सीधे, यहाँ से फौरन हम बाहर निकले फिर वैसे। तो यूहन्ना इस्तबागी ऐसे ही उनको कह रहा था, क्या सांप के बच्चों, इसके पीछे बजाइए कि तुम यहाँ पर तो आए हो बिल्कुल सीधे हो, यहाँ से तुमने फिर बाहर जाना है, फिर तुम्हारे वही किरदार होंगे। ये किरदार सेट कैसे हो? तलाक। सुनाए हम आगे बढ़ते हैं कि खुदा ने बागतन के अंदर असुद जो है उसने खुशखबरी ये दे दी कि जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो अब्लीस के सर पर चल सकता है। इसीलिए यीशु मसीह सलीब पर काने गलील के अंदर मुकद्दसा मरियम को ए औरत कह के जो है वो काटता है। जब ए औरत कहा जाता है तो हमें जो पहले पेशन गोइयां हुई हमें उसको देखना है कि यीशु मसीह क्यों कहता है ए औरत, ए खातून। जब ये सब कुछ हो गया, खुदावंद ने खुद खुशखबरी दी कि कई हजार साल के बाद दाऊद नबी रूह कुदस की तहरीक से ज़बूर 2 लिखता है। ऐसा पहले ज़बूरों की पहली किताब, क्योंकि ज़बूरों की 5 किताबें हैं, पहली किताब उसका दूसरा ज़बूर लिखा जी, कौमें किस लिए तैश में बादशाह और बादशाह के बारे में खुदा की बात, कौमें किस लिए तैश में और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सब अराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं कि आओ हम उनके, खुदावंद और मसीह दो की बात करें, हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है उनसे का और खुदावन उनका मुजाहिका उड़ाएगा, तब वो अपने गजब से
गजब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहर शदीद में उनको परेशान करेगा। और खुदावन यानी बाप खुद ये फरमाता है। तीसरी, चौथी, चौथी, पांचवी, छठी आयत, यहाँ पर बाप कलाम कर रहा है और बाप ये कहता है कि मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस साइयोन पर बिठा चुका हूं। सो इंसान ने जिसने बादशाह को खो दिया था, सो खुदावन ने उसके लिए यूं कहने के खुदावन ने उस पर ये फजल किया, उस पर ये करम किया, उस पर ये तरस खाया कि खुदावन ने अपना बादशाह कोहे सिय्योन पर बिठाया। और फिर ताकि जमीन के बादशाह क्या करें, उसकी ताबे उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं नबियों के सहीफों में से निकालें, शायद नबी का सहीफा उसका 9वां बाब, हमने मूसा के तौरात में से देखा, हमने ज़बूर में से देखा, और अब हम नबियों के सहीफों में से सर यशायाह को देखते हैं, उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत पर अगर हम गौर करें, ठीक है, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद, ठीक है जी, इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ, यशायाह भी इसमें शामिल है, हम भी इसमें शामिल हैं। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तौलद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत, क्या मुराद है सल्तनत, बादशाही, सल्तनत उसके कंधे पर होगी, सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम पेले योएस एल-गेबोर अविअद शर्शलाम इब्रानी में है। उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। उसके बादशाह के बारे में लिखा वो पढ़ते हैं, लेकिन उसकी सल्तनत यानी उसकी बादशाही, उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा वो दाऊद के तख्त और उसकी ममलिकत पर लिखे आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा और ये कौन करेगा, रब्बुल इज्जाज की खयूरी ये करेगी। सो यशायाह जो है वो यीशु मसीह को बतौर बादशाह पेश करता है, वो भी क्या पेश करता है, बादशाह पेश करता है। सो खुदा की बादशाही ये यीशु मसीह की खिदमत का अहम मौजू था। 3 चीजें इस पर हम गौर करके उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यीशु मसीह की तालीम के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह खुदा की बादशाही की तालीम देता। दूसरी चीज, यीशु मसीह खुदा की बादशाही की मुनादी करता। तीसरी चीज कि यीशु मसीह खुदा की बादशाही का जो इख्तियार था वो मुज़ात करके दिखाता था। तो यीशु मसीह की खिदमत के अंदर खुदा की बादशाही की चीज पहली, यीशु मसीह खुदा की बादशाही की क्या करता था जी, तालीम देता। अगर हम अनाजील का मुताला करें तो तकरीबन 15 ऐसी तमसीलें हैं जो सिर्फ खुदा की बादशाही के बारे में, उसने मिसाल दे देकर उसने खुदा की बादशाह को वाज़ेह किया कि खुदा की बादशाही इसकी मानी है, खुदा की बादशाही इसकी मानी है, खुदा की बादशाही इसकी मानी है। या क्या मुफ्ती के जेल के बाप पढ़ सकते हैं। तो याद रखिए कि तालीम जो होती है उसकी बुनियाद पर मुनादी की जाती है। शख्स की जो तालीम है उस चीज की मुनादी करता है, तालीम जो है वो बेस करता है। यीशु मसीह खुदा की बादशाही की तालीम देता है। जो मुबारकबादियाँ पढ़ते हैं उसमें असूल बताएं खुदा की बादशाही में किस तरह हम रह सकते हैं, किस तरह जी सकते हैं। सो अगर हम लफ्ज़ बादशाही पर गौर करें तो लफ्ज़ कलीसिया
दो से अगर देखा जाए यूनानी ज़बान में तो 4 मरतबा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कलीसिया 2 आयत के अंदर 4 मरतबा कलीसिया। और अगर हम पूरे नए अहदनामे का मुताला करें तो 119 आयत के अंदर 127 मरतबा 119 आयत के अंदर 127 मरतबा बादशाही का जो जिक्र आया है। इतना ज़्यादा क्यों जिक्र आया है? इससे मुराद ये है कि ये ज़रूरी था कि बादशाही के बारे में बताया जाए, क्योंकि इंसान अपनी बादशाही को खो चुका है। सो बादशाही जो है खुदावन ने इस पूरे ज़मीन पर आकर उसने ये सिखाया कि बादशाही हमारे दरमियान है, और फिर ये भी सिखाया कि खुदा की बादशाही आएगी। और फिर हमें बादशाही की वो दुआ सिखा के गया कि जब तुम दुआ करो तो किस तरह दुआ करो, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरी तेरा नाम बाप माना जाए, तेरी बादशाही है। वैसे जो आज उसकी जो बादशाही जो ज़ाहिरी बादशाही है, 1000 साल बादशाही है, हो सकता है कि वो आए, हो सकता है कि हम में से कोई आए। इस दुआ को सोच समझ के बड़ा करें, रस्मन ना इसको करें। तेरी बादशाही आए, उसकी बादशाही आए और आपने नजात नहीं पाई, आप बादशाही से बाहर। हमारी गुड न्यूज़ है कि बादशाही किस तरह दाखिल हो सकती है। कुछ लोगों के पास कुंजी है जो किसी को खुदा की बादशाही में दाखिल कर सकते हैं। ये खुदा यीशु मसीह देकर दिया है। मेरे साथ निकालें मत्ती रसूल की इंजील उसका 16वां बाब। सबको मिलकर 16वां बाब को सुधार के अंदर गौर करेंगे। दिक्कत और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे अरमा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां, आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। वो जिनको खुदावंद ने चुना है, उनके पास आसमान की बादशाही की कुंजियां हैं, लेकिन उनके पास जो पहले खुद उसे कबूल करे, उनके पास कुंजियां हैं। मैं तुझे आसमान की बादशाही यानी खुदा की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। सो बादशाही से ये मानी हम सीख रहे हैं कि बादशाही से मानी इख्तियार है। जिसके पास कलाम है उसके पास इख्तियार है, और जो कुछ वो जमीन पर बांधता है वो आसमान पर बनता है, जो कुछ वो जमीन पर खोलता है वो आसमान पर खुलता है, बशर्ते कि वो कलाम के मुताबिक हो। हर एक चीज नहीं जो मर्जी हम यहाँ पर खोल दे तो आसमान पर खुल जाएगी, जो कुछ हम जमीन पर यहाँ पे बांध दे तो आसमान पर, ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने ये वादा किया पतरस और बाकी शागिर्दों का कि मैं तुझे आसमान की बादशाही क्या दूंगा, तुझे कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर क्या करेगा खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा, जो कुछ तू जमीन पर क्या करेगा बांधेगा वो आसमान पर बांधेगा। और कुछ और लोग भी जोर के अंदर थे, उनके पास भी कुंजियां थी, उसको हम देखते हैं। वैसे तो काले लूका की इंजील उसका 11वां बाब और उसकी 52 आयत। बस कुंजियां हैं लेकिन उसका इस्तेमाल उनका दुरुस्त नहीं है। लूका की इंजील उसका 11वां बाब उसकी 52 आयत। इसमें से कहते हैं कि शरअ के आलिमों तुम पर अफसोस,
अशरा की आजम तुम पर अफसोस कि तुमको मार्फत की कुंजी, तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली। तुम ना आप भी दाखिल हुए और ना क्या करते पढ़ते हो। अशरा के आलिमों तुम पर अफसोस कि तुमने मार्फत की कुंजी छीन ली, तुम आप भी दाखिल ना हुए और दाखिल होने वालों को भी यूं तो बस कुंजी है आसमान की भाषा है, लेकिन ना वो खुद दाखिल होना चाहते हैं और दाखिल होने वालों को रोकते हैं ना। आसमान की भाषाएं के अंदर दाखिल किस तरह हो जा सकता है? मेरा आपसे सवाल है, किस तरह दाखिल आसमान की भाषाएं के अंदर? वो असली और अब्दी बादशाह है, उसकी बादशाही है। जब बादशाह पैदा हुआ कसम मरियम से, जिब्राइल फरिश्ता आकर जब कलाम करता है तो बादशाही की बात भी करता है। इसमें हम इसके बारे में जो है वो देखेंगे कि उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। जब बादशाह आ गया, बादशाह जब पैदा हो गया तो फिर बादशाही आ गई। इसलिए यीशु मसीह पक्की और फरिश्तों से कहता था कि आसमान की बादशाही जिसके बारे में तुम इंतजार कर रहे हो ये ज़ाहिर नहीं आएगी। कि यरूशलेम के अंदर उसकी बादशाही है, लेकिन चाइना के अंदर उनकी बादशाही है, पाकिस्तान के अंदर किसी और की बादशाही, फलां इलाके के किसी और की बादशाही। जो ज़ाहिरी बादशाही वो समझते थे, इसमें क्या ऐसा नहीं है जो तुम समझते हो। सो बादशाही हम किस तरह दाखिल हो सकते हैं? अगर यीशु मसीह ने आसमान की बादशाही के बारे में मुनादी की और फिर रसूलों ने आसमान की बादशाही के बारे में मुनादी की तो लोगों को उन्होंने आसमान की बादशाही में दाखिल किया। वजह क्या थी कि उनके पास क्या थी जी? एक स्कॉलर है जिसका नाम निकोदेमस है। टाइम ओवर हो चुका है, जिसको माफी करके इसको क्लोज कर देते हैं। यूहन्ना के जिस के तीसरे बाब में लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स, तीसरे बाब में गया, फरीसियों में से एक शख्स, तो ये फरीसी जो था ये यहूदियों के अंदर एक फिरका, पहली सदी के अंदर तकरीबन 27 उसके फिरके थे और उनमें से ज्यादा जो हैकल के साथ मुंसलिक था, काम करते थे, वो फरीसी। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम, यहूदियों का एक क्या एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, क्या रबी यानी ऐ उस्ताद, तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है कि जो मुझसे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ। यीशु ने जवाब में उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। हम दाखिल होने के लिए आए, यीशु मसीह के दाखिल होने के बारे में भी नहीं बता, देख नहीं सकता जब तक कि वो नए सिरे से पैदा ना हो। निकोदेमस ने उससे कहा कि आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? इम्पॉसिबल। क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? ये फरीसी फिरके का था और ये सरदार था। He was a well educated, but he is not understand what the Jesus is saying. क्यों? ये जिस्मानी शख्स था, यीशु मसीह की बात कर रहा है। जब तक कोई शख्स नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस का जवाब हमने सुना। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जब तक कोई शख्स पानी और रूह से पैदा ना हो वो
खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है, जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। सो रूहानी पैदाइश की जरूरत है। इस आयत को बहुत से लोग इसकी गलत तशरीह और तफसीर करते हैं। नए सिरे से पैदा होने को वो पानी का बपतिस्मा समझते हैं। ये पानी का बपतिस्मा नहीं है, पानी और रूह से। यहां पर पानी से मुराद कलाम है। बपतिस्मा तो उसकी मौत में शामिल होना है और उसे सिखाता है रोमियो के 6 बाब के अंदर। जब तक कोई शख्स पानी और रूह से, पानी कलाम, जब हम कलाम को कबूल करते हैं, अपनी रूह में उतारते हैं और कलाम हमारे अंदर तोड़ फोड़ करता है, कलाम हमें शर्मिंदा करता है कि तुम यहाँ पर गलत हो और कलाम को कबूल कर लेते हैं, तो हमारे लिए पैदाइश होती है। बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा ये नए सिरे से पैदा होना नहीं है। अगर किसी का इसके बारे में सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है, और अगर वो इसी चैप्टर को पूरा पढ़े तो तीसरे बाब के अंदर ही आपको यहाँ पर नई पैदाइश का जिक्र मिलेगा, और फिर 22वें ऐसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको यीशु मसीह पानी के बपतिस्मे देते हैं नजर आएगा। ये दोनों अलग अलग हैं। अगर आप रोमियो का खत पढ़ेंगे 6 बाब में आपको पानी के बपतिस्मे का जिक्र मिलेगा, और 8वें बाब के अंदर आपको नई पैदाइश का जिक्र मिलेगा। अगर आप पतरस के खत पढ़ेंगे तो पतरस के खत के अंदर हम चलते हैं, आते हैं, पढ़ते हैं, उसको हम क्लोज करते हैं कि नए सिरे से पैदा होना। मैंने कहा कि ये बपतिस्मा नहीं है, और मैं इस चीज की तस्दीक किताब मुकद्दस से आपको करके बताता हूं। नए सिरे से पैदा होना बपतिस्मा नहीं है। नए सिरे से पैदा होना, कलाम जब कबूल कर लेते हैं, कलाम को हम अपने अंदर रख देते हैं, कलाम जब हमारी जिंदगी के अंदर असर करना शुरू करता है, तो फिर हमें गुनाह से नफरत हो जाती है। फिर गुनाह करते हुए मेरे भाई हम सोचते हैं, जब हम गुनाह करने के बारे में सोचते हैं तो याद रखिए कि कलाम जो आपके अंदर बोया गया है, बीज की सूरत में खुदा की बादशाही का कलाम जब बोया गया है, तो जब आपको गुनाह से नफरत हो जाएगी, आप उसे भागना शुरू करेंगे, तो समझे कि आप नए सिरे से पैदा हो चुके हैं। उस वक्त आपको मजीद कलाम की जरूरत है। अभी आप सिर्फ पैदाइश हुई है, अभी आप बच्चे हैं, आपको मसीह में बढ़ने की जरूरत है। और बढ़ने के लिए जिस तरह हमें जिस्मानी खुराक की जरूरत है, इसी तरह रूहानी तौर पर मेरे भाई बढ़ने के लिए हमें इस रूहानी खुराक की जरूरत है। फिर सभी कार्य पत्र से शुरू का पहला हम ये सीख रहे हैं कि खुदा की बादशाही में हम किस तरह दाखिल हैं। यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि पानी और रूह से जब तक कोई शख्स पैदा ना हो, वो ना तो खुदा की बादशाही को देख सकता है, दाखिल होना तो दूर की बात है। हाँ, जब हम पानी और रूह से यानी कलाम से और रूह से हम नई पैदाइश पाते हैं, उस वक्त हम खुदा की बादशाह को दाखिल होते हैं। चैप्टर 1 और उसके वर्स 23 है, पतरस रसूल का जी पहला खत है, और उसकी 23वीं आयत है लिखा है, क्योंकि तुम पतरस रसूल कलीसिया को कह रहे हैं, जिनको वो खत लिख रहा है उनको कह रहा है, क्योंकि तुम फानी तुफम से नहीं। तो याद रखिए जमीन का पानी फानी है, वो पानी और रूह से वो बपतिस्मे की तरफ इशारा नहीं है, वो कलाम की तरफ इशारा है कि जब तक कलाम से और रूह से पैदा ना हो, खुदा की बादशाह में दाखिल नहीं हो सकता। क्योंकि तुम फानी तुफम से नहीं बल्कि गैर फानी से, बल्कि गैर फानी से, और आगे क्या लिखा है किताब मुकद्दस में देखते हैं, बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीले से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए। चुनाचे हर बशर घास की मानी है, तो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म बन जाता है, और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानी। घास तो सूख जाती है, फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहता है। मेरे भाइयों, जो खुदावंद के कलाम के वसीला से नए सिरे से पैदा होते हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि वो भी अब तक कायम रहते हैं। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें, तो मैं आज वही आपको कलाम सुना रहा हूँ। बादशाही में अगर हम दाखिल होना चाहते हैं तो हमें खुदा के कलाम को कबूल करने की
پھر روحانی نئی پیدائش ہونے کے بعد میرے عزیزو اس کلام کی پھر از حد ضرورت ہے. جس طرح بچے کو فیڈ کیا جاتا ہے, اسے دودھ پلایا جاتا ہے, پترس اپنے حد کے اندر اس چیز کی بات کرتا ہے کہ تم روحانی دودھ کی خالص دودھ کے مشتاق ہو. خالص, میں نے شروع میں یہ کیا تھا کہ کلام خالص ہو تو ٹھیک ہے, اگر غیر کلام ہو تو کچھ نہیں. پھر کوئی بات چیک نہیں, کوئی اختیار نہیں, طرف مرے 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 گناہ ہو جائے ہونے بیٹھ جاتے ہیں. اختیار سے اسے جب کچھ سوچ کچھ خیال آتے اسے ڈانٹتے کیوں نہیں؟ کئی لوگوں نے نجات پائی ہے لیکن بادشاہی ابھی تک نہیں مل. اس کیا آئے ہم اپنی زندگی پر غور کریں کہ کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہو چکے